Welcome back, students. Now we will discuss and read about height and distance. Already we know that using Pythagoras theorem, if there is a right angle triangle and in a right angle triangle there are three sides: perpendicular, base and hypotenuse. And in a right angle triangle, if two sides are given, we can find the third side using Pythagoras formula: perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square. यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से कोई दो दिया है तो हम इस फार्मूले को यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं. बट हियर इन हाइट एंड डिस्टेंस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वन साइड and an angle is given, then we have to use the process of height and distance. Here at first we will discuss about the digit angle. Here at first we see that different types of objects matters in front of us. Here, if from our eye, if we have to see an object in front of us, it means in a straight line, then we can form the angle of 180 of that object. But if we have to see an object at a height, we have to erase our eye, and so we can see here the parallel line to ground and the ray of that object between this angle is known as angle of elevation. And if we have to see downside, then we have to down our eyes, and so this angle is known as angle of depression. And so here there are two angles: angle of elevation यानी down to up, एंड एंगल ऑफ डिप्रेजियन यानी अप टू डाउन. यानी हमें ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा, और किसी हाइट से हम जो है डाउनवर्ड की ओर देख रहे हैं तो वह एंगल ऑफ डिप्रेजियन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर इफ देयर इज ए पोल and on ground from a point A, if we have to see the top of the pole, we have to erase our eye up, and so this angle is known as angle of elevation. And if from a height, if we have to observe a point or an object on the ground, here we have to down our eye, and so this angle is known as angle of depression. And so if we know that alternate interior angles are equal, so angle of depression here also equal to angle of
इलेवेशन, यानी जनरली यह एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेजियन बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। अब जो है हम इसे यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर इफ in a right angle triangle ABC, if perpendicular is given 10 cm or 10 meter, and at point C the angle of elevation is given 60 degree, and we have to find the base BC and the hypotenuse AC. Here we should know that the relation between, यानी ratio between perpendicular and base and perpendicular and hypotenuse. At first we see the relation between perpendicular and base. We know that tan theta equal to perpendicular by base. Tan theta equal to perpendicular by base. So here टेन थीटा के प्लेस पे हम 60 प्लेस कर दे, और P यानी परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन 10 एंड B बेस हैड टू फाइंड, इट इज BC। यार tan 60, तो tan 60 इक्वल टू √3 बाई 1 इक्वल टू 10 बाई BC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट इज BC √3 इक्वल टू 10, इट मीन BC इक्वल टू 10 by √3. Similarly, if we have to find its hypotenuse, so the relation between perpendicular and hypotenuse, it is sin theta. Sin theta equal to perpendicular by hypotenuse. Here sin theta equal to 60, perpendicular AB and the hypotenuse AC. Here sin 60 इक्वल टू √3 by 2। एंगल वैल्यू तो याद चाहिए, एंगल वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन काफी इजी वे में बन जाएगा। तो यहाँ sin 60 के प्लेस पे हम √3 by 2 लिखेंगे, इक्वल टू AB यानी परपेंडिकुलर 10 एंड AC हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो AC √3 इक्वल टू 10 टू 20, सो AC इक्वल टू 20 √3। इस तरह से जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एक साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में से कोई एक दिया हो और एक एंगल दिया हो, चाहे एंगल ऑफ इलेवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेजियन हो, तो हम अदर टू साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इस बेस पे अब जो है हम NCERT बुक का जो है एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचेड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Here एक फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के हम जो है सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। इसमें जो है फिगर सबसे मोस्ट होता है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम सबसे पहले फिगर ड्रा कर ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज ए पोल and a rope is tied as a hypotenuse and the length of rope is 20 meter. Find the height of the pole, yani let the pole is A, B and that point is C. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, यानी एंगल ऑफ इलेवेशन जो है क्या 30 डिग्री का है, तो हमें जो है हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है।
तो पोल का हाइट यानी ए बी फाइंड करना है। क्लियरली आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल ऑफ इलेवेशन दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। सो द रेशियो बिटवीन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, हियर वी कैन यूज साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हियर साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी यानी हाइट ऑफ द पोल एंड हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन 20. So sin 30 इक्वल टू sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इक्वल टू ए बी बाई हो गया 20। तो 2 से हम 20 कैंसिल करा लें, 10 जार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इक्वल टू 10। यानी इस प्रकार से हाइट ऑफ द पोल जो है वह 10 मीटर। इसी तरह से जो है सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यानी later there is a tree, let it ए बी। यानी मान लीजिए कि ए बी जो है एक ट्री है। अब कह रहा है कि बाई ए स्ट्रोम इट ब्रेक्स फ्रॉम ए पॉइंट, लेट इट आर, यानी आर पॉइंट से क्या टूट जाता है और ऐसे बेंड हो जाता है जो ग्राउंड के साथ जो है टच करता है। यह हो गया आपका ए डॉट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड की 8 मीटर। यह हो गया आपका 8 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए यहां एंगल जो है यह 30 डिग्री का है। तो अब देखें यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा ए बी एक ट्री था जो आर पॉइंट से ब्रिक हो गया, ब्रिक होके जो है बेंड होता है और ग्राउंड को ए डॉट पे टच करता है जहां 30 डिग्री का एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट करता है। अब हमें पूरा जो है ट्री का हाइट फाइंड करना है, इट मीन होल ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए ए आर यह जो है ए डॉट आर के इक्वल होगा, यानी इसका जो है हम हाइपोटेनस फाइंड कर लें और फिर परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। सो एट फर्स्ट इन ट्राइंगल आर बी ए डॉट, एट फर्स्ट सी द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, इट इज tan थीटा। So tan theta equal to perpendicular by base. Here tan theta equal to 30 degree perpendicular RB and the base is 8. Tan 30 equal to 1/√3. So it is RB by 8. Cross multiply कर दें, RB√3 equal to 8. So RB equal to 8/√3. RB का वैल्यू हो गया। Now द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है यह होता है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। सो हियर cos of theta equal to 30. It is base equal to 8 and hypotenuse are 8. So here the value of cos 30 का जो वैल्यू है वह होता है √3/2 इक्वल टू 8 बाई RA डॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, RA डॉट इक्वल टू इंटू √3 इक्वल टू 8 2 16। सो
आर ए डॉट इक्वल टू 16 बाई रूट 3। इस तरह से या परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों मालूम हो गया। नाउ द हाइट ऑफ द ट्री इज, height of the tree. The height of the tree is AB and AB is equal to AR plus RB. अब AR की प्लेस पे हम A डॉट R लिख दें एंड RB. Now put the value RA dot in 16 root 3 plus RB equal to 8 by root 3. So it is 24 by रूट 3। अब इसको हम रेशनलाइज कर दें, रूट 3 से मल्टीप्लाई करके रूट 3 से डिवाइड कर दें। सो इट इज 24 बाई 24 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3। सो 3 8 जार, इट मीन हाइट ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3। आर वी कैन राइट एज रूट 3 का वैल्यू 1.732। 8 से मल्टीप्लाई कर दें। हियर 8 2 jar 16 6 in n1, 8 3 jar 24 1 25 in n2, 8 7 jar 56 n2 58 in n5, 8 1 jar 8 5 13। it mean 13.856 मीटर इज आंसर। इस तरह से हम जो है ट्री का जो एक्चुअल हाइट है वो फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सबमिट किया जाएगा। जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक्स।